Hello everyone, we are the students from the Department of Applied Economics. In this video, we are going to discuss about the Green Revolution. So over to Garima, she will tell you the introduction and background of the Green Revolution. Introduction of Green Revolution. The word Green Revolution used by William Gard. The Green Revolution introduced by Norm Brock in 1960s. He is also known as the father of Green Revolution in the world. Norms win the Nobel Prize in 1970 for his work in developing high yield varieties of wheats. In India, Green Revolution introduced by M.S. Swaminathan, and he is also known as the father of Green Revolution in India. The Green Revolution resulted in great increase in productions of food grains, especially wheat and rices. The great success achieved in Mexico and India. In India, Punjab, Uttar Pradesh, Haryana, and Bihar achieved great success. The Green Revolution is spreading over the period from 1967-68 to 1977 and 78. It is a change Indian status from food deficiency country to one of the world leading agriculture nation. Now I am explaining the background of Green Revolution in India. In 1947, India suffered the world's worst food crisis, which is known as the Bengal famine, which led the death of approximately 40,000 people East India due to hunger. Even after independence in 1947 until 1967, the government largely concentrated on expanding the farming areas and productions areas, but the population was growing at much faster rate than food production. The Green Revolution in India refers to the period when Indian agriculture was converted into industrial system due to adoption of modern methods and technologies such as the use of HYV seed, which is also known as high yield variety seeds, tractors, irrigation facilities, and fertilizers. The Green Revolution in India is the largely wheat revolution as the wheat production increased by more than three times between the 1967-68 to 2003 to 2004. Well, overall increase the productions of foods in India. Thank you. Over to Pooja Gautam. She will explain us the object of Green Revolution. I am going to explain the objective of green revolution. First objective is short term. Short term मीन्स ग्रीन रिवोल्यूशन से पहले बहुत सारी क्राइसिस हो रही थी, बहुत सारी भुखमरी हो रही थी, तो उनको रिड्यूस करने के लिए तो हमारा शॉर्ट टर्म उस पर मेन फोकस करना था कि ये भुखमरी को कैसे ख़त्म किया जा सके। इसलिए इसलिए सेकेंड 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किया गया था कि हंगर क्राइसिस को ख़त्म किया जा सके। सेकेंड इज़ लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में ये था कि एग्रीकल्चर जो था, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सबको बेटर किया जा सके और अच्छे तरीके से यूज़ किया जा सके। थर्ड इज़ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में ये था कि जो दो सेक्टर्स थे, एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, इन दोनों को एम्प्लॉयमेंट दी जाए, वो भी अच्छे से अच्छे एंड बेटर से बेटर। थर्ड इज़ साइंटिफिक स्टडीज़। साइंटिफिक स्टडीज़ में ये था कि जो हमारे जो प्लांट्स थे उनको इम्प्रूव्ड क्वालिटी में लगाए जाएं। एंड पहले ये था कि बहुत सारी बारिश हो रही है, सूखा पड़ रहा है, बहुत सारे क्लाइमेट चेंजेस हो रहे थे, तो उसकी वजह से जो प्लांट थे वो ग्रो नहीं कर पा रहे थे। तो उसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए लॉन्ग टाइम के लिए हो मतलब प्लांट प्रोड्यूस हो लॉन्ग टाइम के लिए, इसीलिए इसको लाया गया था साइंटिफिक स्टडीज़। थर्ड इज़ एक्सपेंशन ऑफ फार्मिंग एरियाज। इसमें क्या था कि फार्म जो थे उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा सके सीड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए। ये स्टार्ट हो चुका था 1947, बट लेकिन इसमें ये था कि हमारी जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही थी, तो हमारी ये जो डिमांड थी वो फुलफ़िल नहीं हो पा रही थी। एंड नेक्स्ट इज डबल क्रॉपिंग सिस्टम। डबल क्रॉपिंग सिस्टम में ये एक प्राइमरी फीचर था ग्रीन रिवोल्यूशन का। एंड इसमें ये था कि एक सीज़न में एक ही क्रॉप प्रोड्यूस, लेकिन ऐसा नहीं, कम से कम एक साल में दो क्रॉप्स प्रोड्यूस करी जाएँ, मेन था। एंड नेक्स्ट था यूजिंग सीड्स विद इम्प्रूव जेनेटिक। जो सीड्स थे वो अच्छे वाले सीड्स प्रोड्यूस किए जा सके।
प्रोड्यूस हो और उनसे और वो लॉन्ग टाइम तक हो। तो इसमें सबसे ज़्यादा मेन जो क्रॉप्स थी होते मेज़ थी, राइस थी एंड ज्वार, बाजरा एंड मेज़। ओवर टू शिवानी, शी विल explain the impacts of green revolution. So there are some positive impact as well as the negative impact of the green revolution. So first of all, I will tell you the positive impact of the green revolution. The first positive impact is that there is an increase in the production of the agricultural crops. यानी जब ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में आया तब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन क्रॉप्स जो थी, जो भी मेनली फूड ग्रेन्स क्रॉप थी, उनमें एकदम से प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ। और इस प्रोडक्शन में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो वीट और राइस की क्रॉप्स थी उनमें सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ। इतना हुआ कि वीट 3 गुना उस टाइम पे प्रोड्यूस हुआ। वहीं अगर सेकंड पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो इंक्रीज पर कैपिटा इनकम ऑफ द फार्मर्स बाय इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चरल आउटपुट। अब जाहिर सी बात है कि जब ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ यानी उनका आउटपुट इंक्रीज हुआ। अब जब आउटपुट इंक्रीज हो रहा है फार्मर्स का तो कहीं ना कहीं उनकी पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज होगी। ये था सेकंड पॉजिटिव इम्पैक्ट। वहीं अगर थर्ड पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो इंडिया बिकेम वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ द व्हीट एंड राइस विच अट्रैक्ट द इंडिया टू सेव द ह्यूज फॉरेन रिजर्व्स। अब क्या हो रहा था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे जब प्रोडक्शन इतना ज़्यादा होने लग गया तो गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना इसे बाहर एक्सपोर्ट किया जाए। जब बाहर एक्सपोर्ट करेंगे तो उसके बदले में उनको फॉरेन रिजर्व्स भी आएगा। तो इस तरीके से इसका तीसरा पॉजिटिव इम्पैक्ट ये था। वहीं अगर फोर्थ पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो इट अफेक्टेड द इंडस्ट्रीज ऑल्सो। अब जब साथ ही साथ एग्रीकल्चर सेक्टर इम्प्रूव हो रहा था तो इंडस्ट्री सेक्टर को भी इम्प्रूव होना पड़ा। अब उस टाइम पे क्या था कि जो फार्मर्स थे नए नए मॉडर्न मेथड्स को यूज़ कर रहे थे, उसके लिए उनको ट्रैक्टर्स की ज़रूरत थी, पंपिंग सेट्स हो गए थे, उस टाइम पे मोटर्स यूज़ किए जाते थे इरिगेशन वगैरह के लिए। तो कहीं ना कहीं इन इंडस्ट्री सेक्टर को भी आगे आना पड़ा उन एग्रीकल्चर टूल्स को बनाने के लिए। वहीं अगर पांचवें पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो देयर वाज एन अप्रिशिएबल इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ लेबर फोर्स ड्यू टू मल्टीपल क्रॉपिंग एंड यूज ऑफ द फर्टिलाइजर्स। अब पहले के टाइम में क्या होता था कि लोगों के पास एक लैंड होती थी, वो उस पर अपना कल्टिवेशन करते थे वगैरह वगैरह। लेकिन जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो उनको एक नई चीज़ पता चली कि हाँ एक पर्टिकुलर एरिया में वो मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम भी अपना सकते हैं, यानी एक साथ वो बहुत सारी क्रॉप्स को उस पर्टिकुलर एरिया में ग्रो कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि फार्मर्स ने क्या किया, लेबर फोर्स की डिमांड बढ़ गई, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेबर को रखने लग गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनका प्रोडक्शन हो सके। वहीं अब अगर बात करें निगेटिव इम्पैक्ट क्या थी तो उस टाइम पे क्या था कि सिर्फ जो फूड ग्रेन्स क्रॉप्स थी उन्हीं को ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही थी। अब नॉन फूड ग्रेन्स जो क्रॉप्स थी उनका कुछ नहीं हो पाया था, तो वहीं उनकी प्रोडक्शन कम हो गई थी। तो ये इसका पहला निगेटिव इम्पैक्ट था। देन सेकेंड नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो देयर इज एन एक्सेसिव यूज ऑफ द केमिकल्स इन द फॉर्म ऑफ द पेस्टिसाइड्स, नाइट्रोजन एंड फर्टिलाइजर्स। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन का मेन कंपोनेंट ही यही था कि पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स को यूज़ करके प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। अब वो फार्मर्स जो क्या थे प्रोडक्शन तो इंक्रीज कर रहे थे लेकिन साथ साथ वो सॉइल को भी खराब कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको पेस्टिसाइड्स यूज़ करनी थी, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स वगैरह यूज़ करने थे। यही इसी के साथ देन थर्ड नेगेटिव इम्पैक्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन का ये था कि टू मीट द नीड्स ऑफ द न्यू काइंड्स ऑफ द सीड्स फार्मर्स इंक्रीज द फर्टिलाइजर्स यूजेस दैट इंक्रीज द पीएच लेवल ऑफ द सॉइल विच लीड्स द सॉइल डिग्रेडेशन एंड सॉइल पॉल्यूशन। जब उन लोगों ने इतना ज़्यादा केमिकल यूज़ करना शुरू कर दिया अपने क्रॉप्स में तो जो सॉइल का जो पीएच लेवल, एक पीएच लेवल होता है सॉइल का, इतना ज़्यादा केमिकल्स यूज़ किया कि उसकी सॉइल की फर्टिलिटी ही खत्म हो गई। फर्टिलिटी जब खत्म हो जाएगी तो वो आगे कोई भी क्रॉप्स हम उस पर ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। तो ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट था। देन फोर्थ नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें द लार्ज स्केल यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स रिजल्टेड इन अ नंबर ऑफ क्रिटिकल हेल्थ इश्यूज। अब जितना ज़्यादा केमिकल्स यूज़ कर रहे थे क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, कहीं ना कहीं इसका एक बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट कहा जा सकता है कि उसके बाद लोगों को कैंसर जैसी बीमारियां होना शुरू हो गई थी। तो वो इसका एक बैड इम्पैक्ट था ग्रीन रिवॉल्यूशन का। वहीं अगर लास्ट बैड इम्पैक्ट की बात करें तो ग्रीन रिवॉल्यूशन हैज़ गिवन द बर्थ टू ग्रोइंग डिस्पैरिटीज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट इंटर रीजनल लेवल। यानी जो मेनली जो फूड क्रॉप्स थी ग्रीन रिवॉल्यूशन में ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस व्हीट और राइस को दी गई थी, और जो कि मेनली ग्रो होती है पंजाब हरियाणा साइड में। लेकिन उसके साथ साथ और भी क्रॉप्स थी जिसको इग्नोर किया जा रहा था। अब मेन सेक्टर तो मेन स्टेट्स देखा जाए तो पंजाब और हरियाणा ही ग्रो हो रहे थे और जितने भी स्टेट्स थे उनको इग्नोर किया जा रहा था, तो वो कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहे थे। तो यहीं पे इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट खत्म होता है। ओवर टू अनुष्का, शी विल टेल यू अबाउट द स्कीम्स अंडर द ग्रीन रिवॉल्यूशन।
Okay, so schemes under Green Revolution. Above Prime Minister Mr. Narendra Modi ji approved the umbrella scheme Green Revolution Krishna Atti Yojana in the agriculture sector for the period of 3 years from 2017 to 2020 with a central share of rupees 33,269.976 crores. Krishna Atti Yojana comprises of 11 schemes under it, and all the schemes aims to increase the agriculture sector and align sector in a scientific manners and increase the income of farmers by increasing production, productivity, and better return on produce. All these are centrally sponsored schemes. So the first scheme is MIDH. MIDH stands for Mission for Integrated Development of Horticultures. This scheme's aim is to provide and increase the growth of horticulture sectors, which includes flowers, fruits, vegetables, tuber crops, spices, cashew nut, coconut, etc. These schemes was implemented in 2014 and 15. NFSM stands for National Food Security Mission. This scheme aims to increase the production of wheat, rice, barley, maize, etc., and other commercial crops through area expansion and productivity enhancement. All these schemes aims is to increase the production of agriculture sectors. This scheme also include NMOOP under it. NMOOP stands for National Mission on Oilseeds and Oil Palms. This scheme aims to increase the availability of vegetable oil in the country and reduce the import of edible oils. This scheme was launched in October 2007. Next is NMSA. NMSA stands for National Mission for Sustainable Agriculture. This scheme aims to promote sustainable agriculture practices that are best suitable to the specific agroecology by focusing on integrated farming, soil health management, water use efficiency, and conservation technologies. It also focus on minimizing farmers' agricultural cost by using organic farming rather than chemical farming and produce nutritious food for the human consumptions. SMSP. SMSP stands for Submission on Seeds and Planting Materials. The central share for this scheme is rupees 920.6 crores. It aims to increase the production by using quality seeds and using new technologies in the seed production so that agriculture production was increased. The next is SMAE. SMAE stands for Submission on Agriculture Extension. This scheme aims to strengthen the ongoing extension mechanism of state government, local bodies, etc., achieving food security and socio-economic empowerment of farmers to forge effective linkage and coordinate among various stakeholders to promote pervasive and innovative use of electronic and print media, ITC tools, etc. The next is SMPPQ. SMPPQ stands for Submission on Plant Protection and Plant Quarantine. This scheme aims to protect plants from disease, insects, pests, pests, etc. Next is ISACES, stand for Integrated Schemes on Agriculture Sciences and Economic and Statistics. This scheme aims to undertake agriculture sciences, undertake research studies, and also to check the fertility of the soil. Next is ISAC. ISAC stands for Integrated Scheme on Agriculture Corporation. This scheme aims to provide financial assistance to farmers and other cooperatives, removing regional imbalance and ensuring the supply of quality yarns at reasonable rate to decentralized weavers. The next is ISAM. ISAM stands for Integrated Schemes on Agriculture Marketing. This scheme aims to increase the infrastructure facilities in the agriculture sector and provide facilities for grading, standardization, quality certification of agriculture produce, etc. The last is NEGPA. NEGPA stands for National E-Governance Plan Aims, which aims to provide farmers education about the production and the fertility of soils throughout the production cycle. Thank you.